Good morning, students. My name is Dr. Shafali Daya from GSSS Kartarpuri, Gurgaon. Our subject mentor is Mrs. Anshul Singla from SCRT, Gurgaon. Today we'll do Chemistry Class 12 P Block Elements Part 2. Here we'll do nitrogen and its compound, then phosphorus and its compound. Both belongs to group 15 elements, right? In part 1 we have already taken the physical and chemical properties regarding this group. Here we'll do only these two and their compounds in detail. To start with nitrogen, see the periodic table, right? On the left hand side we have S block elements, on the right hand side we have P block. और जो ये डार्क हमने कॉलम कर रखा है, this is what? This is the 15th group. We have done this in part 1, fine. So now let's see nitrogen. N, symbol N, and 7 is the atomic number, fine. 7 है तो electron we have 7 electrons, 7 protons, right? 7 electrons are revolving around the nucleus, and in 1s it has 2 electrons, in 2s it has 2 electrons, and in 2p it has 3. In 1s both are paired, in 2s 2 electrons are paired, while in case of 2p orbital we have 3 unpaired parallel electrons, right? Those are of same spin. ये हमने quantum number में भी पढ़ा था, fine. Now we can show it lobe wise. जो हमारा valence shell है उसके electrons लेते हैं, fine. In this figure we have a lone pair जो ये dark color का lobe है around N symbol, and these three are the unpaired electrons of 2p orbital, fine. Now see, we can write the configuration as 1s2, 2s2 and 2p3, fine. नाइट्रोजन की configuration सबको समझ में आई, fine. अब हम इसकी अक्रेंस की बात करते हैं. बेटा नाइट्रोजन हमारे को एयर में मिलती है, ये हम हमेशा पढ़ते हैं, फाइन. क्या कि 78% ऑफ एयर इज नाइट्रोजन गैस, फाइन. तो वही हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कि इट इज द 6th abundance element, and what it is present in air, and it's a principal source for commerce and industries. अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सप्लेनेटरी में कैसे, फाइन. तो जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है that make it unique in this group is the anomalous property of nitrogen. What is the first property? The first property is small atomic size. Obviously ये सबसे छोटा है, दिख रहा है सबको. यहाँ पर कौन से पीरियड में है ये? सेकेंड में, फाइन. इसके पास 2 shells हैं. It do not have any d orbital. It shows the high ionization enthalpy and high electronegativity. Electronegativity mean to say it will take the electrons, right? Now next is the dinitrogen, the very first compound जो हम नाइट्रोजन का कर रहे हैं. डाइनाइट्रोजन के अंदर जो हमारे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे 2 नाइट्रोजन एटम्स के, वो क्या करते हैं? दे फॉर्म 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, मीन टू से दे फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड्स, फाइन. और जो बाकी लोब में 2 पेयर्ड 2s के इलेक्ट्रॉन्स थे, दे आर शोइंग द लोन पेयर जो हमने एंड साइड पे शो किया है, फाइन. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है दैट इज अ लीनियर वन. लीनियर है, बिल्कुल सीधा है. 3 बॉन्ड्स हैं. कौन से? बॉन्ड पेयर के. 1 है लोन पेयर का. बॉन्ड लेंथ इज 109 पिकोमीटर. इट इज वेरी स्मॉल, सो द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन्स. This is the molecule of N2 gas, fine. So nitrogen exists as a dimer. नेक्स्ट थिंग इज द प्रिपरेशन. जब भी हम कोई भी एक कंपाउंड करते हैं किसी भी एलिमेंट का, हम 4 थिंग्स करते हैं मेनली. व्हाट? द फर्स्ट इज स्ट्रक्चर, द सेकंड इज प्रिपरेशन, एंड देन इज
property and then the uses. Fine. तो अब हम इसकी preparation देखते हैं. सबसे पहले हम इसकी preparation fractional distillation से करते हैं. That is the commercial production of nitrogen. Fractional distillation के अंदर बेटा क्या होता है कि उसके अंदर fractions के अंदर based upon the difference between the boiling temperatures of the components, हम different components को अलग कर देते हैं. जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है एयर के अंदर, उनका 13 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, इसलिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं. फाइन. द नेक्स्ट इज द थर्मल डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना. किसका? अमोनियम नाइट्रेट का. तो ये क्या देता है? नाइट्रोजन. देन इज द अमोनियम डाइक्रोमेट. अमोनियम डाइक्रोमेट क्या देता है? दैट गिव्स what? N2 and Cr2O3. नाइट्रोजन हमें मिल गई यहाँ पे. The fourth one is the thermal decomposition. Thermal decomposition mean to say on heating of sodium azide we get what? We get nitrogen gas. These are the preparations. Then comes the properties. The very first property is colorless. हम एयर को देखते हैं, मैक्सिमम 78% है कलरलेस है. कोई कलर नहीं दिखता ना हमारे को एयर में. That is what? It is colorless, odorless, tasteless gas, right? और plenty में है, we know. It is inert. It is unreactive at room temperature. Remind yourself, जब हम 10th में थे तो हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आता था. क्या था? कि why we put nitrogen gas in packed foods, right? Because it is unreactive as compared to the oxygen. Oxidation नहीं होती थी. ठीक है ना? Neutral towards the litmus. Mean to say it is a neutral compound. Neither acidic nor. Very nice. Active metals heated at high temperature forms nitride. जो भी कोई active metals है, active metals मतलब हम उनको heat करते हैं और बहुत उनकी एक्टिविटी ज्यादा, मतलब दे आर वेरी रिएक्टिव, उनके साथ दे फॉर्म्स नाइट्राइड. विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया. फाइन. ये हम आगे करेंगे अमोनिया की प्रिपरेशन में. N2 plus H2 gives NH3. देन कम्स कैल्शियम कार्बाइड. कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब हम नाइट्रोजन को रिएक्ट करते हैं बेटा, तो वी गेट व्हाट? वी गेट कैल्शियम साइनामाइड. फाइन. जिसको कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन, जो हमने यहाँ प्रोडक्ट लिया है, इनको हम नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर बोलते हैं. इसको यूज करते हैं क्योंकि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट गिव्स अमोनिया एंड अमोनिया इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर. सो द यूज ऑफ दिस इज व्हाट? It is a very good fertilizer, and in manufacturing of fertilizer we use nitrogen. Now next to the nitrogen we take ammonia, right? Ammonia is what? NH3. N is the center metal and H3. The nitrogen is showing sp3 hybridization है. sp3 hybridization के अंदर बच्चे हमने पढ़ा कि we have tetrahedral geometry. Fine. जब हमारे पास tetrahedral है, हमारे पास एक लोन पेयर है और बाकी 3 हमारे क्या है? We have bond pairs. Now recapitulate, जो हमारा bond pair repulsion है, that is less than lone pair bond pair repulsion. So what happens? The 109 degree 28 minutes angle of the tetrahedral geometry changes to 107 degree, that of ammonia bond angle. Fine. This means the lone pair reduces the bond angle of ammonia. Fine. ये इसकी आप देखें, bond length and the bond angle is given. The next is the preparation. Basically हम इसकी preparation एयर से, अमोनिया से और हेबर्स प्रोसेस हमारा मेन है, जो हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया सबसे ज्यादा पढ़ते हैं. फाइन. इसको हम इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं. द रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. तो हेबर्स प्रोसेस जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा? वी टेक इट एट वेरी हाई टेम्परेचर.
मीन टू से द हेबर्स प्रोसेस की जो ये रिएक्शन है, दिस इज अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन. फाइन. इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है हमारी लीच-एटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करेगी. वो क्या करेगी? इट विल वर्क विद हाई temperature, that is 400 Kelvin. Then it will give 200 megapascal pressure, and then we'll also take catalyst like aluminium oxide and potassium oxide. Also sometimes in some cases we take molybdenum as promoter. Fine. So Haber's process का पूरा जो सिस्टम है वो ये है, हम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को इकट्ठा कंप्रेसर में डालते हैं. वहां पर विद हाई प्रेशर क्या होता है कि जो गैसेस हैं दे देन कंबाइन नहीं करती, इकट्ठे आ रही हैं, एंड देन दे मूव टू द चैम्बर विद कैटलिस्ट, and this chamber with catalyst also have temperature around 700 Kelvin. This is also a high temperature. High pressure, high temperature के बाद हम यहाँ पर catalyst के साथ क्या करते हैं, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर लेते हैं. फाइन. अब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो अमोनिया में कन्वर्ट हो गई है, दैट विल मूव टू अ लिक्विड कंपार्टमेंट. लिक्विड कंपार्टमेंट के अंदर ओनली जो लिक्विड अमोनिया है दैट विल बी इन द लिक्विड स्टेट. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, पूरी अमोनिया नहीं बनती, सारा नाइट्रोजन से पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा. तो जो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है दैट मूव्स बैक टू द मेन कंप्रेसर चैनल. व्हाई? क्योंकि वो फिर से साइकिल में आएगा, हम उसको वेस्ट तो नहीं करेंगे ना. Yes, हम उसको वापस से रीयूज करेंगे, एंड जो कंप्रेसर से हमारी कंप्रेस्ड गैस आ रही होगी उसके साथ मिक्स करके इट विल अगेन फॉर्म अमोनिया, एंड फ्रॉम हेयर हम अमोनिया को निकालते रहेंगे तभी तो और मोर एंड मोर अमोनिया बनेगा. अदरवाइज इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. यही पढ़ा है अभी तक हमने. ओके. अब हम इसके बाद हेबर्स प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज नोट इट डाउन. हम इसके बाद करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ये हैं कि हमने कभी लैब में जाते हैं, हम अमोनिया को स्मेल करते हैं, अमोनियम का कोई भी कंपाउंड खोल लिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल आता है, पंजेंट ऑर्डर, स्मेल को बोलते हैं ऑर्डर. लाइटर इन एयर है, वाटर सोल्यूबल है. फाइन. इसके अंदर क्या हम कह रहे हैं कि जैसे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तभी हम उसको बोलते हैं ना सॉलिड और लिक्विड के अंदर वो अदर जो एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट है. जैसे H2S इज अ गैस एंड H2O इज अ लिक्विड. सिमिलरली व्हाट हैपेंस हियर, जो यहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो यहाँ पर हमारा सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड होते हैं, एंड दैट इज सेम इन एसोसिएशन के अंदर हेल्प करते हैं, और सॉलिड एंड लिक्विड जो हमारा है उस फेज के अंदर डिफरेंस आता है एज कंपेयर टू द अदर कंपाउंड्स. फाइन. इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है. यही बात आप लोग वाटर के साथ कर चुके हैं, वाटर एंड आइस के साथ. राइट. नाउ इट इज बेसिक इन नेचर. बेसिक इन नेचर का मतलब क्या है? इट हैज लोन पेयर. ये अपने लोन पेयर्स को फटाफट डोनेट करने में बड़ा खुश रहता है क्योंकि वो उसके फ्री हैं. फाइन. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इन लोन पेयर से. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो वो कहाँ बनाता है? जहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल होगा. फाइन. एम्प्टी ऑर्बिटल बेटा जी कहाँ पे होगा? जो हमारे डी एलिमेंट्स होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स होंगे, जो बड़े मेटल्स हैं वहां डी ऑर्बिटल मोस्ट ऑफ द टाइम खाली है, क्योंकि हम वही फिल करते हैं तभी डी में आते हैं. फाइन. तो हम यहाँ देखते हैं अमोनिया जब BF3 के साथ, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल, आप ये नहीं कहोगे कि बी डी मेटल डी ऑर्बिटल में नहीं है. फाइन. हम इसके और एग्जांपल्स आपको देते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर है, कैडमियम है. राइट. इनके साथ जब ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हमारा रिमेम्बर हमने किया था कि वो ब्लू कलरेशन देते हैं, और वो हमारे को एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हेल्पफुल होते हैं. फाइन. अब हमारे पास है इसके यूजेस क्या है? सबसे पहले फर्टिलाइजर, द सेकेंड इज
ऑस्टवॉल्ड प्रोसेसेस के अंदर यूज होता है। ऑस्टवॉल्ड प्रोसेसेस हम अभी आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे नाइट्रिक के अंदर। सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर सिल्वर वाले चैप्टर में, सेम चैप्टर में पढ़ेंगे। लिक्विड अमोनिया इज अ रेफ्रिजरेंट इन आइस फैक्ट्रीज एंड कोल्ड स्टोरेजेस। फाइन, प्लीज नोट इट डाउन, इसका शॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। तो बेसिक ऑक्साइड्स जो है हमारे, हम क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, जो हमने OS लिखा है, वो वेरी करती है नाइट्रोजन की, और इससे वो बहुत सारे क्या बना देता है, ऑक्साइड्स बनाता है। तो वेरी फर्स्ट इज N2O, NO, N2O3। यहाँ पर ये डिफरेंट कैसे हैं हम देखें। जो हमारा थर्ड कॉलम है उसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर देखा है। फाइन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, N2O, O का -2, नाइट्रोजन इज शोइंग व्हाट, X, अभी X है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो नाइट्रोजन का हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लाइकवाइज आप इन सब का निकालिए, आपको इजीली पता चल जाएगा बच्चे कि ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है। NO2 एंड N2O4 ये दोनों का सेम है। NO2 जो है N2O4 इसकी यूनिट है। फाइन, मतलब N2O4 इज द डाइमर ऑफ NO2। इट इज रिवर्सिबल। फाइन, इक्विलिब्रियम के अंदर स्टेट है। अगर हम थोड़ा सा भी N2O4 को बाहर रख दें तो इट विल चेंजेस इनटू अ ब्राउन कलर, दैट इज NO2। NO2 इज अ ब्राउन कलर्ड गैस जो कि फ्लोरीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NO2F बनाता है। N2O3 is what? It is a blue colored solid. It is acidic in nature and it gives HNO2। फाइन, HNO2 हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। माइंडेड, ये कहाँ से बना है, कहाँ से इसकी प्रिपरेशन, N2O3 से। नाउ वी हैव NO, N2O। फाइन, अब हम इसका स्ट्रक्चर करते हैं जिससे हमें ये और क्लियरली समझ आएगा। द स्ट्रक्चर इज, जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, यहाँ देखें कि ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। वी कैन हैव 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ N2O। इन केस ऑफ सेकेंड कंपाउंड आप नोट करें बेटा, हमारे पास लेफ्ट वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। फाइन, इन राइट वन वी हैव सिंगल ऑन नाइट्रोजन। राइट, आपको दिख रहा है सबको। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि बिकॉज इट इज सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरामैग्नेटिक है। ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से इट इज वेरी रिएक्टिव ऑल्सो। Fine. Now in case of N2O3 we have 2 nitrogen attached with, bonded with 3 oxygens, and this is also showing a resonating structures. We have lone pair on only one of the nitrogens. Fine. In case of NO2, similarly I want to point it out, on this nitrogen it has single electron. This means it is also a paramagnetic molecule and it is very reactive like NO. Right, now since it is very reactive, it forms a dimer, and that is what, N2O4. In case of N2O5, which is also known as nitronium nitrate, which is acidic in nature, we do not have any direct bond between 2 nitrogen atoms. There is a single oxygen present in between the 2 nitrogens. Right, this is what, N2O5. Now see the bond parameters. Bond length vary करती है बेटा इनके अंदर। The first वाला is a linear molecule, second is also a linear, बाकी है हमारे planar but angular. फाइन, एंगल्स भी है ना उनके बीच में। जो हमारा फर्स्ट वाला है 180 है, लीनियर है, सेकंड का भी 180 है। यू सी इट इज 113 पिकोमीटर। नाइट्रोजन 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 ऑक्सीजन 119।
एंड लाइकवाइज जब हम नीचे लास्ट वाले मॉलिक्यूल में आते हैं, यू कैन सी द नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ हैज इंक्रीज टू 151. दिस मीन्स इट इज वीकर बॉन्ड बिकॉज इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई है, एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. फाइन, तो अब हम इसको नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग वाटर भी कहते हैं लैटिन के अंदर, ठीक है. दैट इज एक्वा फोर्टिस. एक्वा इज वाटर एंड फोर्टिस मतलब मेन, स्ट्रॉन्ग. देन इट इज ऑल्सो नोन एज स्पिरिट ऑफ नाइटर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3. You see, it is also a resonating structures with positive at nitrogen and negative charge at oxygen atom. Fine. Now look at the structure. In HNO3 molecule, three oxygens जो हैं वो attached हैं. One is doubly bonded and two are single bonded. While in case of this single bonded, the right one side we have in turn a hydrogen atom also bonded to that oxygen. Fine. It is simply a molecule with delocalized resonating structure and it occurs like this only. Fine. Then is the preparation. Preparation के अंदर we do two kinds of preparation. One is the laboratory method, that is the most common method we can alright. The next is the Ostwald process. In the last slide, remember I told you we'll do Ostwald process. In Ostwald process, what is the process? It is for the manufacturing of nitric acid from ammonia. Fine. This is the use of ammonia. अमोनिया को हम क्या करते हैं? अमोनिया को हम एयर की प्रेजेंस में प्लेटिनम गेज कैटलिस्ट के साथ प्लैटिनम कैटलिस्ट के साथ हम उसको रिएक्ट करते हैं, तो वी गेट व्हाट? वी गेट नाइट्रिक ऑक्साइड. अब जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या करता है? इट रेडिली कंबाइंस विद द ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स व्हाट? NO2. NO2 then in turn do what? NO2 with water reacts to form HNO3. अब जो हम यूज करते हैं बेटा, जो एक्वस नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाट? 68% बाय मास. तो जो हम नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं? उसको हम डिहाइड्रेट करते हैं. डिहाइड्रेट मीन टू से वी रिमूव द वाटर फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड. तो रिमूव करने के लिए व्हाट वी डू? वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, तो द परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड होती है दैट इंक्रीज इट बिकम्स concentrated by mass. The next is the properties. Properties, what? The simple physical property is what? It is colorless. फाइन. स्टिल जब हम उसको थोड़े दिन के बाद देखते हैं बॉटल्स के अंदर जो लैब्स में पुराना नाइट्रिक एसिड डला होता है, दैट इज कलर्ड समवट लाइट ब्राउनिश कलर्ड, येलोश कलर टिंज आती होती है उसके अंदर. व्हाई? बिकॉज जो नाइट्रिक है दैट कन्वर्ट्स, डीकम्पोजेज इनटू NO2 एंड NO2 इज अ ब्राउन कलर्ड गैस. फाइन. देन मोस्ट कॉमनली अवेलेबल नाइट्रिक एसिड जो है वो 68% ऑफ वाटर है. उसको हम वैसे भी यूज कर सकते हैं जब हम उसको एज अ प्रिपरेटरी प्रोसेस के लिए यूज नहीं करते, कोई प्रिपरेशन के लिए नहीं करते, तो हम उसको डाइल्यूट एज 68% भी करते हैं. फाइन. नाइट्रिक एसिड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस विद मेटल. फाइन. हमने पढ़ा है ये कि जब हम मेटल की किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देता है, बट नाइट्रिक के अंदर वी यूज टू एग्जेम्प्ट इट. इट शोज विद सम मेटल्स ओनली एंड दीज आर मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. पॉइंटेड आउट with every metal it don't do this exercise, this reaction. The uses are fertilizers. One of the main uses, it is used for the making of explosives like TNT. राइट. इसका स्ट्रक्चर हम ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में करेंगे. इन प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वी यूज एक्वारीजिया. एक्वारीजिया सोल्यूशन जो होता है वो हम यूज करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड. इसको हम यूज करते हैं तो इससे हम ऑर्नामेंट्स को क्लीन करते हैं एंड ऑल्सो एज अ रॉकेट फ्यूल. फाइन. तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट विथ फॉस्फोरस. फॉस्फोरस बेटा नाइट्रोजन के एग्जैक्टली डाउन है. ऑरेंज वाला नॉन मेटल है,
15 इसके एटॉमिक नंबर है, तो 15 इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. वी कैन इजीली write the electronic configuration of phosphorus. How come? It is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Fine. 3d भी होता है यहाँ, but it is empty. थर्ड में d ऑर्बिटल होता है. फाइन. तो जो हमारा p ऑर्बिटल है उसके अंदर we have 3 unpaired parallel same spin electrons. Fine. These 3 are reactants. Now एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस. फॉस्फोरस के बेटा 3 एलोट्रॉप्स हैं, वाइट, रेड एंड ब्लैक. जो वाइट है वही थोड़े दिन अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रखें, दैट चेंजेस टू क्रीम, येलो कलर. फाइन. सो द 2 phosphoruses are white and red. Today these we are doing. White phosphorus is sp3 hybridized phosphorus formed by P4 units. Right? जो P4 units हैं बेटा जी, they are with bond angle of 60 degrees. Fine. On exposure to light जो है, white phosphorus changes to yellow phosphorus. Its physical property is it is soft, it is translucent, it is waxy, butter-like. Right? Its boiling point is very low. The P4 molecules जो है phosphorus के, वो एक दूसरे के साथ simple van der Waals forces के साथ of attraction के साथ linked होते हैं, तो इनका boiling point कम हो जाता है. Fine. ये हम prepare करते हैं by reacting calcium phosphate, right, in the presence of silica, sand and carbon coke at the very high temperature of 1773 Kelvin. Fine. जो white phosphorus है उसका structure you can see, it is very easy. I think अब आपको समझ में आया होगा क्या कैसे 4 phosphoruses हैं, 4 corners में arranged है. Right? जो हमारा P4 है वहां पर angle strain होता है. Why angle strain? Because जो इनका angle है that is only 60 degree. तो जो angle strain है, this makes us very reactive, fine, and unstable. Now it readily catches fire. Fire ये catch करता है तो it gives greenish color and that is like glowing color. So we say that it is showing phosphorescence, greenish tinge के अंदर shine करता है. Okay बेटा जी. Then comes the red phosphorus. Red phosphorus is grey lustrous, odorless, non-toxic. It even don't dissolve in water and organic solvents like CS2. Right? It has high density, high ignition temperature. High ignition temperature mean to say कि इसको burn करने के लिए it is less reactive, तो इसको burn करने के लिए हमें friction देनी पड़ेगी. हम इसीलिए इसको we use it as मैचस्टिक के अंदर हम यूज करते हैं. जो उसका हेड होता है उसको रब करते हैं, फ्रिक्शन से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड इट गेट्स बर्न. Red phosphorus can be prepared from white phosphorus by heating it at 573 Kelvin with CO2. Fine. This is what red phosphorus. Hopefully you understand. Now moving towards its compound is phosphine. Phosphine like ammonia. Ammonia पढ़ा था NH3. अब हमने पढ़ा PH3. PH3 is what? Hydrogen phosphide. Hydrogen phosphide, the molecule is just similar to the ammonia molecule where it has one lone pair and 3 bond pairs. Here also what happens due to the bond pair, lone pair repulsion, the bond is reduced to 93.5 degree, right, as compared to the tetrahedral angle of 109 degree, right. Now the structure is pyramidal. Geometry is tetrahedral. The very first is the preparation. The very first preparation we do with calcium phosphide. Calcium phosphide in water produces phosphine. Calcium phosphide with acid also produces phosphine gas.
Now, phosphorus, the white phosphorus, when reacted with the basic NaOH, it gives phosphine. Fine. In the inert atmospheric CO2 atmosphere, right? In that medium. Okay. The next is the property. The very first property, it is colorless. The next property, it is flammable. And the third and the starred property is it is extremely toxic. It is really very toxic gas with a garlic-like odor. Matlab the smell is also very strong. Its structure is similar to ammonia that I told you, but it is much poorer solvent. It do not want to mix with anything. It is not friendly molecule and is very less soluble in water. The decomposition at 120 degree is it gives the white phosphorus back on decomposing. फाइन. जो हमारा phosphine है जब decompose हो जाता है it gives phosphorus. Which phosphorus? White phosphorus, right? The next is the uses. Phosphine gas is used in the semiconductor industries as dopants. फाइन. डोपेंट क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसको हम एन टाइप बी, मतलब उनके अंदर हम जब इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं और उनको चेंज करते हैं उनकी प्रॉपर्टी, तो हम उसको डोपेंट के थ्रू करते हैं. फाइन. हम उनको ऐड कर देते हैं फॉस्फीन को, 15 वाला ऐड कर देते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, तो 15 ये आप पढ़ेंगे NNP टाइप में. फाइन. pH3 is used in Holmes signal due to its property of spontaneous combustion. ये अपने आप combustible है तो we use it as Holmes signals. Fine. The next is phosphorus halides. Phosphorus halides बेटा बहुत सारे हैं. PCl3, PCl5 मेनली हम पढ़ते हैं. halides तो 4 है. Fluorine, chlorine, bromine and iodine. We do 2, PCl3 and PCl5. Fine. PCl3 जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है? इट इज सिमिलर जैसे अभी हमने अमोनिया का टेट्राहेड्रल वाला किया. ऊपर लोन पेयर है, बाकी हाइड्रोजन की प्लेस पे हमने क्या कर दिया? क्लोरीन लगाया है. फाइन. बॉन्ड एंगल इसका 100 डिग्री पर रिड्यूस हुआ है. बॉन्ड लेंथ इज 204 पिकोमीटर. फाइन. जो हमारा PCl5 है उसके अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. आप देखें, इट हैज 5 Cl. 2 आर ऑन द एक्सियल एक्सिस है, एक नीचे Cl है और एक ऊपर पूरा लाइन में है. राइट. दैट इज ऑन द 90 डिग्री टू द प्लेनर. प्लेनर वाले जो है वो इक्वेटर है, इक्वेटोरियल है. तो वी हैव टू काइंड्स ऑफ, वी हैव व्हाट? We have two kinds of, we have बेटा देखो two kinds of PCl bonds है, ये वाला और ये वाला और ये वाला. These three are what? These three are equatorial. And this one and this one. These two are what? These are axial. फाइन. इनकी बॉन्ड लेंथ में भी डिफरेंस है. आप देखेंगे एक्सियल थोड़ा सा लंबे हैं क्योंकि वो दूर है प्लेन से. रिपल्शन होती है. इक्वेटोरियल के 3 है, एक नीचे एक ऊपर है. रिपल्शन 3 की ज्यादा है इसको, तो ये बहुत लंबा है. तो ये वाला बॉन्ड लेंथ है इसकी 202. राइट. PCl की 214. फाइन. ये इनकी डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ है. ओके. PCl 214 और ये वाली 202. इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से लर्न कर लेना. फाइन. द नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन. प्रिपरेशन इज फ्रॉम ड्राई Cl2. ये हम सब कर चुके हैं 11th में. फाइन. क्या किया था हमने क्या किया? हमने SOCl2 हमने पढ़ी है, थायनिल क्लोराइड पढ़ी है. PCl3 बनता है इससे, व्हाइट फास्फोरस से. फिर हम PCl3 को यूज करते हैं फॉर OH रिमूवल. OH को हटा के रिप्लेस करके Cl ऐड करते हैं. रिमेंबर हम एल्कोहल से क्लोरोएल्केन बना रहे हैं. PCl3 को वाटर से ऐड करते हैं तो वी गेट व्हाट? H3PO3. फाइन. ओके. नाउ सिमिलरली वी हैव द रिएक्शन. सेम रिएक्शन से आप प्रोडक्ट देखें थोड़ा सा डिफरेंट है. व्हाट? हमने व्हाइट फास्फोरस को क्लोरीन के साथ, एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ किया तो PCl5 हमें मिलेगा.
सेकेंड वाले रिएक्शन में हमने देखा, सेकेंड रिएक्शन क्या कह रहा है बेटा, सेकेंड रिएक्शन कह रहा है जब हमने थाइनोइल क्लोराइड को यूज किया इन एक्सेस इट गिव्स PCl5। सिर्फ ये डिफरेंस है एक्सेस का एंड लिमिट ऑफ द रिएजेंट्स का। फिर है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हमने की POCl3 मिलेगा हमें, कब मिलेगा, जब हम PCl5 को वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे। फाइन। उसके बाद फाइनली जो POCl3 है दैट इज अनस्टेबल एंड इट गिव्स H3PO4। फाइन। देन नेक्स्ट इज हमारा PCl5 डिकम्पोज हो जाता है इजीली PCl3 में, देन मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मेटल हैलाइड बनाता है। उसके बाद दिस एंड दिस सेम रिएक्शंस है, यू सी हम PCl5 को भी यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ OH एंड द एडिशन ऑफ Cl, क्लोरोहेल्केन के लिए। यूजेस एज क्लोरीनेटिंग एजेंट है, क्लोरीन ऐड की है इसने, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फास्फोरस एसिड, क्लोरोएल्डिहाइड एंड फास्फोरिक एसिड डेरिवेटिव। अभी ऊपर ऊपर चल रहा था, हमने यहाँ एसिड किया, POCl किया, एलाइड किया, ठीक है, ये इसके हमारे यूजेस है। नेक्स्ट इज द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस सिमिलरली नाइट्रोजन की तरह है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है और हमारे फास्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक है, पायरोफॉस्फोरिक है, मेटाफॉस्फोरिक है और कुछ हमारे फॉस्फोनिक, फॉस्फीनिक, ये हमारे कंपाउंड्स हैं H3PO2। These are based upon the oxidation, different oxidation states. Now we are showing orthophosphoric structure. This is the phosphoric acid structure. Fine. Please note it down. Very nice. Now moving to the next, we have assignment. Note the assignment. होपफुली बेटा आपको ये सारी आ रही है। अब जो भी आपने अभी रिएक्शंस और जो भी स्लाइड्स देखी हैं, you are very comfortable and you can easily do it. All the best. होपफुली आप ये सारी करेंगे और नेक्स्ट टाइम